It is said that with hard work and dedication, anything is possible. Today's Ambika's story is just the perfect example of that. So, hi everyone, welcome to Let's Improve Nursing. I'm English educator Shraddhara ma'am, and today we have Ambika Shaw with us, who appeared in JENPA Suji 2025 examination and scored an outstanding rank there. Her GMR rank is 792. Also, she appeared in ANM GNM examination as her backup exam. There also she scored a outstanding rank where she scored in ANM she scored 211 and GNM she scored 204. So, hi Ambika, welcome to Let's Improve Nursing. How are you feeling? Hello, ma'am. I'm good. How are you, ma'am? Good, good. We are very happy to see you come this long way. And a big congratulations from the whole Let's Improve team. तुमको. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, so the thing is that कि तुम 2025 में एग्जाम दी हो, राइट? Yes, ma'am. उससे जस्ट इन पहले हम 2024 में भी हम अपीयर किए थे। अच्छा, just one thing, Ambika, I'll just like to tell you. Are you comfortable in Bengali? मैम हम बंगाली समझ लेते हैं बट बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। Okay, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay. चलो, I'm asking again, okay? ओके मैम। Okay. So 2025 में you appeared in JNPAS UG examination, but यस मैम। as we have talked earlier, and you were the batch student also, we know that you appeared for 2024 JNPAS UG exam as well, right? यस मैम। So there, what was your score? What was your rank? In 2024 I got 10,823 something rank and my marks was 40 point something. Okay. And So this time in 2025 I have scored 54.0833 marks and my GMR rank is 792. so that's a huge transition. Yes, Uh, ma'am. Previous year you scored 10,000 rank, and this year you're straight under 1,000 rank. 100,000. Yes, So ma'am. there's a big difference, and we would definitely love to know how did you do that? मैम बस इसमें हार्ड वर्क था मेरा और मैं कंसिस्टेंसी था और आप लोगों का गाइडेंस यही मेरे को बहुत हेल्प किया है और गॉड पे बिलीव Okay. ये सब मेरा था स्ट्रैटेजी। Okay. And ये तो like there is a will, there is a thing कि हाँ यस मुझे करना है, because मैं तुमको बहुत दिन से like I have been connected to you, right? From यस I guess अभी हो गया, बहुत टाइम हो गया तुमको हाँ कनेक्टेड रहने में. 2024 से ही हम लोग एक दूसरे को जानते कनेक्टेड है हम लोग। 2024 say yes. So that यस time also you were for the guidance we had a talk, right? And from यस there onwards you are in our batch also, right? So you यस have been मैम। हम consistently स्टार्टिंग studying. में बैच ज्वाइन किए थे 2024 में आरआईसी बैच जो लास्ट बैच था उस ईयर का जो फाइनल रिवीजन बैच था जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था वो आपसे बात किए फिर आपको गाइड किया आपने बोला कि ये Yes. बैच ले लो बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैंने आपका ही बात सुन के ये बैच खरीदा और सही में मेरा मतलब जो 3 मंथ्स का स्ट्रगल था मतलब 3 मंथ्स में हम कितना ही कर पाते होल सिलेबस करना पॉसिबल नहीं था नहीं मेरे लिए। पॉसिबल नहीं है. तो बस वो आरआईसी बैच में जितना हो पाया मेरे से आप लोगों का गाइडेंस मिला आप लोग और आप इंग्लिश इतना से समझाएं जो कि इंग्लिश मेरा वीक था पहले उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं ग्रामर पोर्शन बट आपके करने से बाद मतलब आपका गाइडेंस मेरे को बहुत हाई लेवल तक लेके गया है। इंग्लिश में लाइक तुम इस बार कितना अटेम्प्ट की हो, मतलब 2025 इंग्लिश में तुम कितना अटेम्प्ट की हो जेन पास मैंने में? पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था मैम। मतलब 20 में 20. हाँ, 20 में 20। ओके. एंड इसके अलावा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या क्या था? स्ट्रॉन्ग में मेरा लॉजिकल रीजनिंग था, ओके. बायोलॉजी था और इंग्लिश भी था। ये तीनों मेरा स्ट्रॉन्ग था और फिजिक्स, केमिस्ट्री में मेरा फिजिक्स अच्छा था, बट केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, ओके. केमिस्ट्री में प्रॉब्लम था. सो केमिस्ट्री में हुँ, तुमने कितना टोटल अटेम्प्ट किया था? मैंने टोटल आई गेस 10 8 टू 10 क्वेश्चंस मैंने शायद अटेम्प्ट किया है। 8 to 10. ओके, ओके. डन. सो तुमने पिछले साल तुम्हारे पास टाइम कम था, राइट? 2024 हुँ, के टाइम पे यू हैड वेरी लेस टाइम विथ यू, राइट? यस मैम, But 2025, you got the whole year and some extra month as well because of the delay of the OBC case, right? तो यस उसके मैम, लिए. So maximum students उस टाइम पे उस दौरान they were very much demotivated. कुछ कुछ का स्टडी रूटीन बिगड़ गया था वो टाइम पे. You know, यस, there were so much of questions, lot of questions in students' mind कि क्या होगा नहीं होगा. And उसके चलते बहुत ब्रेकेज भी हुआ है. So what बिल्कुल did मैम। you do in that time? सबके माइंड में यही चलता था कि आखिर ये एग्जाम होगा या नहीं होगा क्योंकि एक बार डेट निकल चुका था बोर्ड की तरफ से और जो डेट वो लोग निकालता है वो तो फाइनल ही रहता है उसके बाद वो लोग चेंज करता नहीं बहुत रेयर केसेस में वो लोग चेंज करता है। तो बाद में फिर बहुत वेट किए हम लोग को बिलीव था कि आप लोग अगर बोल रहे हैं आप लोगों का साथ है तो मतलब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आप लोग अगर एग्जामिन करके अच्छे से बता रहे तो हम लोग के लिए अच्छा है क्योंकि आप लोग हर तरफ से देखे थे आप लोग की क्या हो सकता है नहीं हो हाँ. सकता पॉसिबिलिटी वगैरह।
तो मुझे लगा था कि नहीं, अगर मैम लोग बोल रही है तो ये होगा ही एग्ज़ाम। अब बिना एग्ज़ाम दिए सही में मेडिकल फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है कि 1 ईयर ड्रॉप ले ले या कुछ भी कर ले ये लोग एग्ज़ाम ना लें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये फील्ड ही हाँ, ऐसा हाँ। है कि इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। हुँ, तो हुँ, बस आप हुँ। लोग बोले, हम लोग बिलीव किए। आप बोले थे कंसिस्टेंट रहना, आपकी बातों पे हम लोग विश्वास किए, जो-जो आपने कहा था बस उसी सबको फ़ॉलो किया मैंने मैम। और उस टाइम पे लाइक जब स्टूडेंट्स लोग मतलब जब पढ़ाई नहीं कर रहे थे या फिर उन लोग का माइंड डाइवर्ट हो गया कि होगा नहीं होगा या फिर उस टाइम हुँ। तुम भी क्या सेम की हो या फिर तुम ब्रेक ले ली थी क्या एग्जाम मतलब पढ़ाई से या फिर पढ़ाई का लेवल तुम इंटेंसिटी कम कर दी थी कि अभी कम पढ़ते हैं या फिर क्या किया था तुम फिर? नहीं मैम, आप जैसा बोले थे ना कि अभी देखो अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो हल छोड़ दिए होंगे, मतलब और वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, लोग हुँ, सोच लिए हुँ, होंगे कि हुँ। अब एग्ज़ाम होना ही नहीं है। हुँ, तो हुँ, आप हुँ। बोले कि अगर इसी वक़्त है कि जो बच्चे को रैंक करना है, जिसको निकालना है, वो अभी इसी वक़्त स्टार्ट करेगा तो उसका बेटर होगा। तो हम हुँ। बस वही किए, शुरू से एंड तक हम कंटिन्यू रखे अपना स्टडी को, कभी एक दिन भी गैप हम नहीं दिए और जिस दिन गैप देते थे हम उसका नेक्स्ट डे हम उसको मेकअप करने का कोशिश करते थे। आप लोग का सारा लाइव क्लासेस देखते थे, जो भी मैं रिकॉर्डेड पोर्शन था उसको कवर अप करते थे, मॉक टेस्ट देते थे। फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह कहीं से मिल जाए तो उसको अटेम्प्ट करते थे हम। एक्चुअली बस यही हम सब लोग के करते रहते। ऐप में वी कैन सी कि कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड हुँ, आई हुँ। हैव एंड आई गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शाइन सर एज वेल तो ही ऑलवेज यूज्ड से कि अंबिका मॉक टेस्ट दे रही है बिकॉज वो स्टूडेंट का वो रहता है कि वो प्रोफाइल रहता है जैसा है कि हम लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं कि हुँ, ये हुँ। स्टूडेंट दे रहा है कितना गलत है एवरीथिंग राइट हुँ, हुँ। तो ये तो मुझे भी पता था कि तुम मॉक टेस्ट देती थी तो हुँ, चलो क्योंकि इसका साइंस सर शुरू से हम लोगों को बोलते थे कि मॉक टेस्ट दो, आप लोग भी बोलते थे मॉक टेस्ट दो और हम ये चीज़ देखे भी, पिछले साल तो हम मॉक टेस्ट दिए नहीं थे और हाँ एंड मोमेंट पे मॉक टेस्ट देते थे, कम मार्क्स आता था, डिमोटिवेट फील करते थे। फिर बोलते थे अब पता नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे, जो होना है वो तो होगा ही, जो किस्मत में है लिखा वो तो होना ही है। बट इस ईयर एक बार फर्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट हम दिए, मार्क्स थोड़ा कम आया, मतलब जैसे 2024 में मेरा मार्क्स आ रहा था अराउंड 40 टू, मतलब 50 तो नहीं पहुँच रहा था, 40 के अराउंड ही था। तो हम बोले ठीक है अभी कम आ रहा है, सर लोग का प्रैक्टिस अभी तो बाकी है, वो सारा करते रहेंगे तो मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरे अंदर ये फीलिंग आ गया था कि हाँ, अच्छा मार्क्स तो इंक्रीज़ होगा ही। तो फिर जाके धीरे-धीरे देते गए। लास्ट का 3 टू 4 मंथ्स में हम बहुत सारा मॉक टेस्ट दिए अच्छे खासे, 2 बार 3 बार करके जितना बार हो सका मेरे से हम उतना बार अटेम्प्ट किए। भले ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ था लेकिन वो मेरे को याद थोड़ी रहेगा क्वेश्चन कि कौन-सा है, नहीं है, तो बार-बार उसको प्रैक्टिस करते थे, तो बस हाँ इसी तरह मेरा क्योंकि वो मार्क्स भी अच्छा शफल आने हो लग गया जाता था। है हुँ, हुँ, क्वेश्चंस हुँ। हाँ हाँ इसलिए। Actually, मैंने to the audience who are watching right now and who are thinking कि I'll take a preparation in 2026, please make sure that you attempt the mock test because mock test attend করা यस। খুবই দরকার। এরকম প্রচুর স্টুডেন্ট আছে আমাদের পেইড ব্যাচেও ছিল এবং যারা আমরা যখন ভিডিওতেও বলতাম যে তোমরা মক টেস্ট দাও। অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা মক টেস্ট তো নিয়েছে বা ব্যাচে ছিল তো ব্যাচে তোমরা মক টেস্টও পেয়েছো। কিন্তু মক টেস্ট যেমনকে তেমনই পড়ে আছে। ওরা ধরে অব্দি নি মক টেস্ট কেন কি ভয় বা দিয়ে কোনো ফায়দা নেই। বাট মক টেস্ট দিলে এটা ইমপ্রুভ হবে এটা 100% যে মক টেস্ট তুমি দিবে মক টেস্টে তোমার ইমপ্রুভমেন্ট ডেফিনিটলি কিন্তু হবে। সো यस मैम, मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हम तो बोलेंगे जो भी 2026 में देने वाला है एग्जाम वो लोग अभी से प्रिपेयर रहे कि वो लोग एकदम मॉक टेस्ट दें। हम भी शुरू में बहुत डरते थे मॉक टेस्ट से कि मार्क्स कम आएगा, डिमोटिवेट होंगे और फिर पढ़ाई कर नहीं पाएंगे और अदरवाइज क्या है कि मतलब सराउंडिंग से भी बहुत सारा प्रेशर रहता है स्टूडेंट के ऊपर कि ये छोटा मोटा एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर कर रही हो, इसके लिए कोई प्रिपरेशन लगता है क्या, जब तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी तो हाई लेवल वाले एग्जाम का क्यों सोच रही हो, बहुत कुछ बोलने वाला बात होता है। तो वो सभी सुनते रहते थे बट आप लोगों का विश्वास था, आप लोगों का बात हम सुनते रहे, करते रहे, अपना टेस्ट वगैरह देते रहे, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिना मॉक टेस्ट का कोई भी स्टूडेंट पास नहीं कर सकता एग्ज़ाम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और इस बार तो मतलब वी आर चेंजिंग द पैटर्न हम लोग पूरा क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि चैप्टर टू चैप्टर वाइज़, यूनिट वाइज़ we'll keep the mock हुँ, test that हुँ, will हुँ। help students to, यस मैम, make more बूस्ट अप uh, देयर मार्क्स। yeah, boost up their mock test, their thing because कि एक-एक सब्जेक्ट में like in every subject there are some topics, right? Some chapters. So in those chapters it might happen कि एक जन को इसी चैप्टर में दिक्कत है, एक जन को उस चैप्टर में दिक्कत है। तो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, व्हाटएवर द इश्यू इज़, no matter how much challenging it is, when you solve the particular test, वो वाला मॉक टेस्ट, वो चैप्टर हुँ, यूनिट वाइज़ वाला मॉक टेस्ट, दैट टाइम you will have some more confidence and the grip यस। on the chapter. So that is very important. हुँ, तो वो भी और दिस प्लस आप लोग का मॉक टेस्ट में तो सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट भी था, 10-10 हाँ, मार्क्स, सब्जेक्ट 20-20 वाइज़ भी मार्क्स था। का। हाँ, यस, तो वो यस। भी बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग में सब कोई वही अटेम्प्ट करते हैं अपना मार्क्स देखने के लिए हाँ, क्योंकि हाँ। छोटे से ही सब कोई बड़े होते हैं, धीरे-धीरे एग्ज़ैक्टली, कर के सब लेवल अप होता है। तो स्टार्टिंग में भले ही कम आए लेकिन उसपे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको रखना ही पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि अभी कम आ रहा है लेकिन अगर यही चीज़ हम हुँ, बार-बार प्रैक्टिस हुँ। करेंगे तो मार्क्स इंक्रीज़ आ ज़रूर होगा जाएगा। ये और मैंने यही मेरे कितने साथ ना हुआ। जाने कितने वीडियोज़ में मैंने ये बताया कि हुँ, देते हुँ। रहो, हो जाएगा। हैव पेशेंस, हैव बिलीव, तुम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये सो जब अंबिका तक हम लोग हाँ, हाँ, बोलो, मैम। बोलो।
बोलो, जब बोलो। तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। अगर हम लोग बस सोच रहे हैं ना और करेंगे ही नहीं स्टार्ट, कोई भी चीज़ को स्टार्टअप देने से पहले हम लोग सोच नहीं सकते कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और जब एग्ज़ैक्टली। स्टार्ट कर दिए, तो धीरे-धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी घर का क्या माहौल है? अभी घर में मैम बहुत खुश है, मेरे अंकल-आंटी लोग तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा खुश है। अभी तो उन लोगों के बच्चे लोग हैं, वो अभी छोटे-छोटे हैं, अभी 10 पास नहीं हुआ है वो लोगों का। एक है 7 में, एक है 9 में, मेरे खुद भाई लोग हैं, वो लोग 8 में है, 7 में है, ऐसे करके। तो अभी 10 क्रॉस तो नहीं किए हैं, तो फिर वही बोलते हैं कि देखो एक बच्चा अगर घर से निकल गया ना, तो देखो कितना मज़े की बात है कि मतलब उससे ही वो लोग गाइडेंस लेगा, उसी से वो लोग बिल्कुल। सीखेगा, उसी से लाइन अप होगा वो हुँ, लोग का। हुँ। हाँ, तो बस और ये सबको के खुद में भी कितनी खुशी आँख में वाली बात आँसू है। आ गया था खुशी का। हम भी बहुत रोए कल, मेरे को भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। सब कोई बहुत इमोशनल थे। अ, ये तो एक डेफ़िनेटली एक बात है। मुझे याद है तुम शायद एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के ठीक पहले सेंटर हुँ, के लिए तुम गई थी राइट? तुम्हारे अंकल यस, के वहाँ पे एंड देयर वाज़ अ पार्टी हाँ, एंड आई यस, रिमेंबर दिस गर्ल कॉल्ड मी, शी टेक्स्टेड मी वेयर एंड वेयर नॉट, शी कॉल्ड मी इन एवरीवेयर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल है शी कॉल्ड मी एंड देन शी इज़ टेक्स्टेड मी एवरीथिंग कि मैम ये बात हो रहा है कि मैं कैसे रिवीजन करूँगी और उस टाइम पे हम लोग का मैराथन भी टाइम का वो था। मतलब जो हुँ। स्पेशल मैराथन था लास्ट टाइम पे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वहाँ से आया भी क्वेश्चन है। हाँ, तो मैम वो बहुत सा क्वेश्चन वहाँ से कॉमन था। आपका इंग्लिश में भी कॉमन था, एग्ज़ाम बायो में भी कॉमन था पूरा का पूरा मतलब हाँ, ऑलमोस्ट कॉमन हम बोलेंगे। केमिस्ट्री में भी कॉमन था, हम भले ही कुछ-कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए बट क्वेश्चन पढ़े तो वो मेरे को याद था कि हाँ, ये क्वेश्चन मैम ने करवाया है। तो मैम का हुँ, तो हर हुँ। साल कॉमन होता है केमिस्ट्री में, उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। और आपका भी हाँ। जो-जो एग्ज़ाम्पल इवन आपका एग्ज़ाम्पल से भी कॉमन मिल जाता है ऑप्शन के साथ-साथ एकदम। अ, ये तो हम लोग जब गए थे सेंटर विज़िट में दैट टाइम हुँ, मेनी स्टूडेंट्स दे हैव क्लेम्ड कि मैम आप जो पढ़ाए हो वही आया है, वहीं से हम लोग एकदम, अटेम्प्ट कर एकदम। पाए थे। और लास्ट मिनट रिविज़न जो होता है ना मैम, वो हाँ, सबसे बेस्ट होता है। अगर वो येस। कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा तब तो फिर हो गया उसका, लास्ट मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, और तुम तब पैनिक कर रही थी कि तुम कैसे कर पाओगी ये। तो हाँ, फाइनली मैम सारा तुम्हारा पैनिक, सारा हेडेक, सारा सब कुछ कुछ ओवर हुआ। एवरीथिंग हाँ, चलो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा वो गया है एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। मतलब हम लोग एज़ अ टीचर जब स्टूडेंट लोग को देखते हैं ना कि हाँ, बैच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। इवन हुँ, बैच के हुँ, अलावा भी यूट्यूब से जो लोग भी पढ़ते हैं, আমরা हुँ। ওদেরকেও দেখি। আমরা তাদেরকেও কিন্তু দেখি কেন কি ওরা আমাদেরকে কনস্ট্যান্টলি টেলিগ্রামে মেসেজ করছে। রাইট? কেউ টেলিগ্রামে কলও করে দিচ্ছে, মেসেজ করছে। তো ওই টাইমটাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই স্টুডেন্টটা এরকম আছে, এটা জানতে চাচ্ছে, এটা করছে, লেগে আছে। যে লেগে থাকে কোনো কিছুর পিছনে সেটা টিচাররা বুঝতে পারে। অ্যান্ড মানে আমাদের ব্যাচের মধ্যে অ্যাভেঞ্জার ব্যাচ বলো, ড্রিম ব্যাচ বলো, তারপরে আরআইসি 1-2 বলো, আমরা পার্টিকুলার দেখেছিলাম কারা লেগে থাকে। অ্যান্ড এখন যখন ওই স্টুডেন্টরা পেয়ে যাচ্ছে, এত ভালো একটা র‍্যাংক করছে, আন্ডার 1000 র‍্যাংক বলো, ঠিক আছে? আন্ডার 500 বলো, আন্ডার 100 বলো, যেটাই করছে অ্যান্ড উই আর ভেরি প্রাউড, উই আর ভেরি হ্যাপি যে চলো, যেটা দেখেছি সেটা আরকি স্টুডেন্ট ওরকম করতে পারছে বা ওই জায়গাটায় পৌঁছাতে পারছে। সো अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशंस अंबिका थैंक तुमको। यू सो मच मैम। आप लोगों का गाइडेंस नहीं होता तो सही में मैम मेरा नहीं होता रैंक। हम तो सोच ही नहीं सकते कि आप लोगों के बिना मेरा कुछ पॉसिबल होता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नहीं, एक टीचर का एकेडमिक भी ईयर में क्या होता है कि एकेडमिक स्कूल वगैरह में क्या होता है जो सिलेबस रहता है वो बुक के अंदर से आता है और कॉम्पिटिटिव जो भी लेवल का होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का वो सब में हुँ, होता है कि मतलब कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, बच्चे आगे बढ़ ही नहीं सकते नहीं हैं। सकता तो मेरा मेन एग्ज़ैक्टली। मकसद था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से। वो मेन होता है। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हम लोग का होगा भी नहीं। एग्ज़ैक्टली। तो इसके अलावा भी मुझे कुछ-कुछ पूछना है तुमसे दैट इज़ कि तुम अभी नर्सिंग या पैरामेडिकल तुम क्या चूज़ करना चाहती हो? मैम हम तो शुरू से बीएससी नर्सिंग ही चूज़ करना बीएससी चाहते हैं। नर्सिंग कोई मतलब टारगेटेड कॉलेज की ये वाला कॉलेज है, इसमें जाना है? हाँ मैम, टारगेटेड कॉलेज था मेरा जर्मन मातो मेडिकल कॉलेज जो कि पुरुलिया में है, मेरे घर के पास नहीं है, ज़्यादा दूर है नहीं, डिस्टेंस है नहीं ज़्यादा, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिर वो पास में रहेगा, घर के पास रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो जल्दी से सब कुछ अवेलेबल रहता ही है यहाँ पे, वो हो जाएगा और वही अगर हम दूसरा कॉलेजेस टारगेट करते हैं, ऐसे कोलकाता में भी मेरा हो जाएगा मेरा रैंक पे। ऑलमोस्ट हुँ। बहुत सारा कॉलेजेस मेरे को मिल सकता है। एसएसकेएम हो गया, आरजी कार हो गया, ये था सब कॉलेज मेरे को मिल जाएगा, बट हम टारगेट किए थे कि पुरुलिया वाला कॉलेज मुझे मिले तो बेटर होगा। हाँ, तो क्योंकि इस रैंक में तो अम, लग रहा है कि मेरे को मिल जाएगा। हाँ एंड विल प्रे फॉर दैट कि तुम्हारा मिल जाए उसमें। जैसे हुँ, कुछ-कुछ स्टूडेंट्स लोग का होता है कि मुझे उसी क कॉलेज में चाहिए, कुछ-कुछ का होता है मुझे घर के पास चाहिए, कुछ-कुछ का होता है कि हुँ, मुझे कोलकाता में ही पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, हुँ। सो देयर आर सो मच ऑफ ठीक है, सो स्टार्टिंग में मेरा था हाँ, कि नहीं भई कोलकाता जाके पढ़ना है। बट उस अच्छा, टाइम ये दिमाग में नहीं था कि अगर बहुत दूर हो गया, घर से दूर रहेंगे और मैं बचपन से ना हम बलरामपुर में रहे, मैं जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं वो बलरामपुर है। तो मेरा 1 से लेके 10 तक या 12 तक बोलिए सब हम बलरामपुर में रह के किए, सब यहीं पे हाँ। स्कूल मेरे को मिला, ट्यूशन हुँ, वगैरह हुँ। सब कुछ। बाहर हम कभी रहे नहीं अकेले, तो एक होता है ना अंदर से फ़ोबिया हो जाता है कि बिना मम्मी-पापा के हम कैसे रहेंगे अकेले।
कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे क्या करेंगे आगे? तो इसलिए हम बोले नहीं घर के पास रहेगा, मम्मी-पापा भी को जब कॉल करना रहा, जब बुलाना रहा तब हम लोग मिल सकते हैं। और सैटरडे चलो संडे में तो छुट्टी रहता ही है, तो उस टाइम पे आना-जाना भी हो जाएगा पॉसिबल। एग्ज़ैक्टली। थ्रू आउट द प्रिपरेशन अंबिका लाइक तुम 2024 में एग्ज़ाम दी थी तो उस टाइम तुम्हारे पास 3 मंथ्स था और हुँ, अभी तुम्हारे पास पूरा साल एंड 1 साल से ज़्यादा ही टाइम था तुम्हारा टोटल, यस राइट? मैम। तो इस टाइम पे मतलब तुम्हारे साथ कौन-कौन था या फिर लाइक कौन तुमको सपोर्ट किया इस टाइम पे? क्योंकि 10,000 रैंक वो बहुत ज़्यादा होता है, यस राइट? मैम। देखिए मैम, इस टाइम पे सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो हम गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इवन हम दीक्षा भी लिए हुए हैं, तो उस लाइन में हैं तो जैसे गुरु मेरे को ज्ञान देते हैं, वो सब ज्ञान पे हम चलते हुए उन पे भरोसा करते हैं। और दूसरा ये है कि वो उन्होंने ही गुरु ने ही मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलाया है। आप लोग इतने अच्छे टीचर मुझे मिले मेरे लाइफ में, मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, इवन बेस्ट फ्रेंड भी मुझे बहुत हेल्प किया है। ये सब के लिए हम बहुत-बहुत थैंक यू करते हैं सब कोई को। ओके। लेट्स इम्प्रूव टीम मेरा बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। तुम तो उनके मुझे बिना सबसे हम ज़्यादा सही में कुछ परेशान नहीं। किए हो, वो बताओ हाँ, कि तुम बहुत हाँ मैम, परेशान किए हो मुझे। 1 ईयर 2024 जब से हम आपसे बात किए हैं, इवन जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल किए थे ना पूछने के एग्ज़ैक्टली लिए, मुझे तो याद है। हमको लगा था रात का 12 बजे हम किए थे। हम बोले कि ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है कि कोई मैम जो पढ़ाती है वही कॉल उठाए, वहाँ पे कोई और रहते हैं कॉल रिसीव करने के लिए। तो हम बोले कि मेरा मैम से बात हो सकता है? तो फिर आप बोले कि मैं ही मैम बोल रही हूँ और उस टाइम पे मेरा हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गया। हम बोले बाबा रे! मैम बोल रही है, मैम से मेरा बात हो रहा है। हम उस टाइम पे बिलीव नहीं कर रहे थे मैम, आपको हम बताए थे, है ना? एग्ज़ैक्टली मुझे तो याद है। फिर हम बोले कि चलो भाई अच्छा अब तो गाइडेंस अच्छा खासा मिल जाएगा, मैम से पूरा डायरेक्ट बात हो जाएगा, सब कुछ मैम बता देगी। तो आप बोले कि नहीं ये आरआईसी बैच ले लो, अगर चांस मिला तो बिल्कुल मत छोड़ना, हुँ, ले लेना। तो हम ट्राई किए, उस टाइम पे भी 3 मंथ्स में ही मेरा 40 मार्क्स आ गया था किसी भी तरह। मेरा 11 उतना अच्छा था नहीं, मैं 11 थोड़ा वीक था, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मुझे ट्यूशन पढ़ाना रहता था, स्कूल जाना रहता था और मतलब मेरे पास वैसा कुछ व्हीकल भी नहीं था कि हम ड ज़्यादा यूज़ कर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो समझ ही सकते हैं कि बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर ट्यूशन पढ़ाओ, फिर खुद का ट्यूशन जाओ और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो बस 11 किसी तरह बस कट गया, उसके बाद 12 आए। पहले तो हम सोचे नीट का तैयारी करते हैं, फिर ऐसा-ऐसा हो गया नीट के चक्कर में कि मतलब लोगों का एक्सप्रेशन देख के मुझे तो डर सा लगने लग गया कि इसमें अगर गए फिर नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि 1 ईयर ड्रॉप लेके फिर नीट का तैयारी करो, उसमें नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम बोले कि नहीं एक बार इसी में ट्राई करते हैं, यही मतलब मिल गया तो हम उसी से खुश हो जाएँगे क्योंकि एक्सेस के चक्कर में फिर जो मिलता है वो भी खो जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा। इसलिए। ओके, ओके। अच्छा, यस। नाउ विल मूव टू अ सेगमेंट जहाँ पे टॉपर स्टॉक में हम लोग जो गेस्ट होते हैं, उससे हम लोग कुछ रैपिड फायर पूछते हैं। जस्ट यू नीड टू गिव मी आंसर इन वन सिंगल वर्ड और एकदम शॉर्ट में, ठीक है? नो ओके एक्सप्लेनेशंस मैम। नीडेड, ठीक है? ओके। ठीक। सो ओके, सो योर प्रिपरेशन टाइम वाज़ व्हाट? नाइट और डे टाइम? नाइस। नाइट टाइम, ओके। पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स? हैंड रिटन नोट्स। ओके। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास? लाइव क्लास, ऑब्वियसली मैम लाइव क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? लाइव क्यों क्लास में जो इम्पोर्टेंट है? इंटरेक्शन होता है ना मैम, वो एकदम लगता है कि हम एकदम मैम के सामने बैठे हुए हैं, फेस टू फेस कनेक्शन ऐसा होता है क्योंकि आप लोग सारा चैट्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा बात कोई ना कोई टीचर जो आगे में है वो सुन रहा है। भले ही हम लोग डिजिटली मीटअप कर रहे हैं बट फिजिकल वाला फील आता है हम लोगों को। और रिकॉर्डेड में क्या है कि जो आप बोल दिए वो बस सुनना है ना हम लोग डाउट पूछ सकते हैं ना कुछ। और लाइव में कि हम लोग डाउट पूछ सकते हैं, अपना कुछ भी क्वेरी हुआ वो सब पूछ सकते हैं। आप लोग सब चीज़ में हेल्प करते हैं, तो लाइव क्लासेस मोस्ट हम लोग मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो हम लोग को करना चाहिए। प्रीवियसली जब हम 2024 में जब जनपास यूजी दिए थे, हम रिकॉर्डेड किए थे। फिर एक दिन सायंस सर मेरे को पकड़ लिए लाइव क्लास में कि तुम तो लाइव क्लास करती नहीं हो, आज तुमको हम देखे अब से तुमको डेली लाइव क्लास करना पड़ेगा, हम डेली तुमको देखना चाहते हैं। और उस दिन से फिर हम जो लाइव क्लास अटेंड करना शुरू किए, एंड तक हम लाइव क्लास किए हैं। भले कभी-कभार हो जाता था ऐसा कि प्रॉब्लम आ गया तो उस टाइम पे हम नहीं कर पाते तो वो बात अलग है, तब रिकॉर्डेड कर लेते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइव क्लास हाँ, किए और तुम लाइव मोस्ट क्लास ऑफ द करने के टाइम बाद मुझे रिकॉर्डेड पता तो चला। बिल्कुल नहीं करती थी, तुम लाइव क्लास ही करती थी और ऐसे तो क बिल्कुल, बिल्कुल। कम दिन ही होता था कि तुम रिकॉर्डेड मतलब क्लास में हुँ, नहीं हो। हुँ, हुँ, यस हुँ। मैम। ओके, इसलिए और अच्छा, हम तो सभी स्टूडेंट को बोलेंगे भी कि लाइव क्लास अटेंड करो, भले ही कितना भी प्रॉब्लम हो लेकिन लाइव क्लास अटेंड करना ही चाहिए। ओके। लॉन्ग स्टडी आवर्स और शॉर्ट टाइम्स स्टडी का? शॉर्ट टाइम स्टडी मैम। ब्रेक ले शॉर्ट लेके टाइम, करना चाहिए मैम, हाँ। क्योंकि एक ही बार में एक ही चीज़ को अगर पढ़ते रहेंगे ना तो हम लोग का माइंड जो है ना वो जो चीज़ कैप्चर करना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ वो फिर नहीं करके वो छोटा-मोटा चीज़ को कैप्चर करेगा। तो छोटा-मोटा चीज़ जो है वो हर वक़्त काम नहीं आता है। तो इसलिए क्या है कि शॉर्ट टाइम स्टडी लेना चाहिए, कुछ-कुछ जैसे कि मतलब पूरा शेड्यूल को जो है अपना डे रूटीन को
पार्ट वाइज़ पार्ट डिवाइड कर लेना चाहिए कि इस पार्ट इतना टाइम में हम लोग को इंग्लिश का पढ़ना है, इतने टाइम में हम लोग को फिज़िक्स का पढ़ना है। ऐसे क्या है कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट का हम लोग का थोड़ा-थोड़ा करके रिवाइज़ हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके ही फिर वो धीरे-धीरे, धीरे कंटिन्यू करके अगर रखते रहेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, तो हम लोग का एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन टाइम तो दोबारा अच्छा खासा मिल जाएगा। ओके, यूट्यूब क्लासेस और बैच क्लासेस। बैच क्लासेस बैच क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, विदाउट बैच लिए नहीं होगा। यूट्यूब में हम लोगों को शॉर्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। शॉर्ट एंड क्लिप्स वे से रहता है, तो जो डिटेल वे से अगर पढ़ेगा ना, तो वो क्या है कि डिटेल वे में अच्छा खासा उसको आइडिया हो जाएगा टॉपिक का कि इस टॉपिक में मेरे को क्या पढ़ना चाहिए। उसको खुद से अंदर से फ़ील होगा कि हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक अगर मैं क्लियर नहीं होता, तो आगे जाके मेरे को दिक्कत होता है और सारा टॉपिक इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर टॉपिक से इंटर रिलेटेड अगर सम एक टॉपिक में कुछ भी पार्ट अगर पोर्शन क्लियर नहीं हुआ ना, तो आगे वाला चीज़ हम लोग को समझ नहीं आएगा। और यूट्यूब क्लासेस में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, लॉन्ग वीडियो बना नहीं सकते हैं, तो इस वज़ह से हम लोग को बैच ही एग्ज़ैक्टली। लेना सही है। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है तो बैच में भी पढ़ाना, यूट्यूब में भी हुँ, पढ़ाना और फिर डिस्ट्रैक्शंस और फिर लॉन्ग कंटेंट यस मैम, और फिर एड्स, तो ये सब की वजह से यूट्यूब में वो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हुँ, स्टिल वी ट्राइड आवर बेस्ट टू प्रोवाइड सम कंटेंट एंड एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा जो चेकमेट सीरीज़ था, फिर मैराथन्स था, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, वो एवरी टाइम देयर हाँ, हैज़ वो टू तो बी। करना ही पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। वो आएगा भी और स्टूडेंट्स लोग को करना भी चाहिए। Okay. हुँ, So, Amika, thank you so much for the interview, and we again congratulate you for this amazing, थैंक यू सो मच outstanding मैम। rank, 10,000 to 100,000 rank, and this was a really inspiring story by Ambika Shaw. এবং তোমরা যারা যারা এই মুহূর্তে 2025 এর এই টপ স্টকটা দেখছো, এটাকে তোমরা একটা মোটিভেশন হিসাবে নিতে পারো, বিকজ 2026 এর জন্য কিন্তু আমাদের হাতে টাইম কম, তাই তো? তো সেটার জন্য তোমরা যদি প্রিপারেশন নিতে চাও, তোমরা ডেফিনিটলি কিন্তু প্রিপারেশনটা স্টার্ট করে দাও। বেশি দেরি করো না, কেন কি যত দিন যাবে তত কিন্তু তোমার পড়ার চাপটাও বাড়বে, and সেটাও কিন্তু তোমাদেরকে মাথায় রেখে চলতে হবে যদি তুমি यस मैम সিরিয়াসলি और स्टूडेंट्स 2026 এ करते चाओ। হুম, বলো। स्टूडेंट्स लोग को हम तो बोलेंगे कि बैकलॉग एकदम क्रिएट ना करें। बैकलॉग अगर रहेगा ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फँसेगा वो लोग फिर। अब बैकलॉग कंप्लीट करेगा या आगे वाला लेक्चर्स वो लोग कंप्लीट करेगा। হুম, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए बैकलॉग ना रहे स्टूडेंट्स का कंटिन्यू वो लोग जैसे-जैसे आप लोग उन लोग को गाइडेंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये करो, वो करो, उन लोग को ठीक उसी वे से करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जैसे-जैसे बोलते थे, हम ठीक उसी वे से करते थे। आप लोगों का दिया हुआ रूटीन भी हम फॉलो किए हैं मैम। ओह! अच्छा, अच्छा। दैट्स हाँ, रियली तो नाइस। बोलते थे कि लॉजिकल रीज़निंग में इतना टाइम देके हम लोगों को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन क्वेश्चन हुँ, प्रैक्टिस हुँ। में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा कि टाइम लिमिट रख के हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में अगर टाइम लिमिट से हम लोग नहीं करेंगे ना, तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन में तो मार्क कर लेंगे, लेकिन ओएमआर फ़िल नहीं होगा हम लोग से और हुँ, वही हुँ, प्रॉब्लम हुँ। मेरे 1-2 फ्रेंड के साथ भी हुआ है कि वो लोग क्या कि क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ली क्वेश्चन पेपर में बट ओएमआर में फ़िल नहीं कर पाए जिसकी वज़ह से रैंक आया बहुत बहुत पीछे चल गया रैंक और ओके। मार्क्स भी बहुत कम आया है। मैंने এক্সাম के पहले ভিডিও বানায়া থাকে ওএমআর में ये सारी चीज़ें মানে এই यस, জিনিসগুলোকে ভালো মতন দেখে চেকলিস্ট করে যাবে। অ্যান্ড সেখানে যেটা মেক্সিমাম স্টুডেন্টরা ভুল করে, পুরোটা ১ম এ করে নিল, তারপরে একটা, একটা করে हुँ, ওএমআর শিট হয়তো ভরছে বা দেরি হয়ে গেল কোয়েশ্চেন সলভ করতে, যে ওএমআর ফিল করার জন্য টাইমই নেই। আবার তখন এক্সট্রিম তাড়াহুড়ো লেগে যায়, তখন স্টুডেন্টরা ভুল ওএমআর বাবল ফিল করে দেয়। মানে 35 নাম্বারের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ভাবো 36 নাম্বারে ফিল করে দিল। কেন কি तो পরপর থাকে তো চোখ ये ধাঁধিয়ে चीज़ के যায় लिए আমাদের। मैम जैसे ओएमआर फ़िल करने का जो प्रॉब्लम होता है, ये बिना ओएमआर प्रैक्टिस किए होगा नहीं। जब हम लोग स्टार्टिंग से जब बैच जॉइन करते हैं ना, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आता है लास्ट का 3 टू 4 मंथ्स उसमें ओएमआर प्रैक्टिस ही करना चाहिए हम लोग को। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना भी रहेगा सब ओएमआर में फ़िल करके करो, क्योंकि उसमें ना फिर हाथ बैठ जाता है लोगों का कि हाँ, इतना स्पीड से हम लोग कर सकते हो ओएमआर फ़िल। तो वो फ़िल अप करने में टाइम भी कम लगता है और एग्ज़ाम के टाइम में हम लोगों को ना ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं किए या हम लोग के लिए न्यू है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तब उस हुँ, टाइम पे हुँ। लगता है उस टाइम नर्वसनेस फ़ील भी नहीं होगा। कि ऐसे मतलब ओएमआर कैसे फ़ील करें, हाथ काँपेगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबका होता है कि हाथ काँपता है, बबल से बाहर निकल जाता है, एग्ज़ैक्टली, हाँ, कोई हाँ। और बबल में फ़ील करती है, तो ये सब प्रॉब्लम वो प्रैक्टिस के साथ-साथ खत्म हो जाएगा। Exactly. And that's why we suggest students a lot many things that an aspirant should follow in order to get into a great college, a good college, and for that you need to score good marks and good rank. So thank you so much, Ambika, for being with us, and वेलकम we wish मैम, you all the very best for your future and stay connected. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, And যারা তোমরাও যারা দেখেছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য টপার স্টক 2025। এরকম আরো ভিডিওর সঙ্গে কিন্তু আমি তোমাদেরকে জন্য ডেফিনিটলি তোমাদের জন্য আরো কিন্তু এরকম ভিডিওস নিয়ে আসবো। তো তোমরা দেখতে থেকো। টিল দেন কিপ ওয়াচিং এন্ড কিপ লার্নিং। বাই বাই।